So the college decides that we are going to distribute the tickets in advance. हम advance में tickets वो करेंगे. Everyone who comes into classroom number 2, जो पहले 500 लोग क्लासरूम नंबर 2 में आएंगे, उनको हम 100 रुपीज में ये टिकट दे देंगे. What the college says कि the first 500 people to come in classroom number 2 will be given all the tickets for 100 rupees. Now people start speculating, अरे टॉम क्रूज आ रहा है भाई, 100 रुपए की टिकट तो बहुत सस्ते में मिल रही है. Ideally this ticket should cost at least 800 rupees. So there is one party who thinks so, कि नहीं यार टॉम क्रूज आ रहा है, टॉम क्रूज 100 रुपीज में, and all the 500 people reach over here and purchase this thing at 100 rupees. ठीक है. But they have this plan कि बाद में हम भले इस इवेंट में नहीं जाए, हमारा कोई फ्रेंड होगा या जो भी होगा उसको वी विल सेल एट 300, 400, 500. सो 100 का अगर वो 400 पे बेचेंगे, 300 रुपीज विल बी देयर प्रॉफिट. दिस इज प्रिसाइजली व्हाट थिंग. देयर इज अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स who actually knows about this event but is not buying this ticket. क्यों? उसको ये लगता है कि this particular movie which is going to release on July 28th is going to be the worst movie of Tom Cruise. उसकी दुनिया की सबसे बेकार मूवी होगी, जिसके कारण उसकी TRP इतनी घट जाएगी that this 100 rupee ticket would be worth even 10 rupees. No one would ready to pay. तो ये लोग इसको buy या sell कुछ भी नहीं करते. Now let's take fast forward. ठीक है. Let's say July 28th the movie releases and becomes a blockbuster. Scene 1, it becomes a blockbuster. Now what will happen? Obviously there would be more demand for this ticket. Everyone wants to now watch Tom Cruise coming to the college. So now what will happen is, out of this 500 people, 200 people might decide, instead of even 800, now we will sell it at 1200. So what happened, guys? They made a bumper profit. 100 rupees का लिया, 1200 पे बेचा, 21 दिन में पैसे डबल. This is precisely what did. But let's say the second case. The second case is this performs so badly, this movie performs so badly that even this 100 rupee thing, now no one is even ready to buy at 10 rupees the ticket. अब क्या हो गया? These people, all the 500 people now are in loss. So basically all these 500 people had picked up an option with the anticipation of an event. इनने एक ऑप्शन खरीदा था एक उम्मीद से कि टॉम क्रूज की मूवी चलेगी और डिमांड बढ़ेगी, but unfortunately that didn't happen. This is precisely what happens in options. Let me give you another example. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हम लोग रियल एस्टेट्स में बहुत ये चीज होता है. So let's say आपने एक प्रॉपर्टी देखी, now you want to buy this property, लेकिन ये premature property है, that is pre-built जो बोलते हैं कि 4 साल बाद डेवलप होगा. ठीक है. So now why you want to buy? Because the location in which this property is, this is a very prime location and you feel कि काफी सारी कंपनीज इधर आके सेट होंगी, तो ऑटोमेटिकली the price of this real estate will actually go up. So now what happens is, this particular property जो इसका बिल्डर रहता है, he says कि भाई देख लो, इस बिल्डिंग की प्राइस अभी 20 लाख रुपीज है. He says that pre-booking, अगर आपको बुक करना है आपके नाम पे, you will have to give 5 lakh rupees, which is non-refundable. Now based on your estimates, you find out कि यार ये 20 लाख की चीज जैसे ही यहां पर कंपनीज आएंगी 2 साल में, this automatically will become 50 lakh rupees. और ये प्री बिल्ड है, अभी पूरी बिल्डिंग बनी भी नहीं है. ठीक है. 50 लाख हो जाएगा. तो आप सोचते हो कि यार अच्छा है 5 लाख पे, और आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि बॉस अगर दाम बढ़ भी गया तो मैं ये 20 लाख पे लूंगा. अब यहां पर हम बिल्डर के 2 केस लेते हैं. पहली चीज, बिल्डर नोज सम इनसाइडर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच उसको पता है कि भाई यहां पर कोई कंपनियां आने नहीं वाली हैं, और ये बिल्डिंग जो वो बना रहा है, ही इज मेकिंग फॉर 18 लाख रुपीज, ही फील्स की 2 लाख रुपए में भी बेच के मैं निकल जाऊं. दैट इज केस नंबर 1. सेकंड, द बिल्डर डजंट नो अबाउट एनीथिंग एंड मे बी देयर आर कंपनीज कमिंग एंड ही डजंट नो अबाउट एनीथिंग. लेट्स टेक इट फास्ट फॉरवर्ड. अब क्या होता है कि अचानक से यहां पर स्टे लग जाता है, गवर्नमेंट का स्टे लग जाता है आफ्टर द सेकेंड ईयर. द बिल्डर सेज कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता. नाउ टेल मी वन थिंग, स्टे लग गया एंड लेट्स से गवर्नमेंट सेज दैट नो, दिस प्रॉपर्टी इज नाउ नलिफाइड, इस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है. नाउ दैट यू हैव पेड 5 लाख रुपीज, विल यू रियली पे अनदर 15 लाख रुपीज? ऑफ कोर्स नॉट. अब थोड़ी पे करोगे, जब गवर्नमेंट बोल रहा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, खारिज कर दी गई है एंड उस पर स्टे लग गया है, तो आप तो फंस गए हो.
So now what happens is this 5 lakh rupees was the premium which you paid. इसको हम प्रीमियम कहते हैं, जो आपने इस उम्मीद से लिया था कि ये 50 लाख हो जाएगा, बट अब उसकी वैल्यू हो गई है 0 अंडा. ठीक है. बिल्डर को उस केस में क्या हुआ, क्या लॉस हुआ? नहीं, नॉट एग्जैक्टली. बट अब सेकंड केस लेते कि कोई स्टे वे नहीं लगता है, यहां पर सही में कंपनीज आ जाती हैं. नाउ विद इन द थर्ड ईयर इटसेल्फ, चार साल में बिल्डिंग रेडी होने वाली, लेकिन थर्ड ईयर में ही इसका वैल्यू हो जाता है 60 लाख रुपीज. नाउ विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यू टू पे द रेस्ट 15 लाख रुपीज एंड एक्वायर द बिल्डिंग? ऑफ कोर्स यस. अब ये लॉस किसका हो गया? बिल्डर का. इन द सेंस बिल्डर, इफ ही वुडंट हैव गिवन यू दिस 5 लाख रुपीज में बुकिंग कर लो और 20 लाख रुपीज में आई विल सेल यू आउट, तो ये बच जाता. और दोस्तों इसी तरह से ऑप्शंस के ट्रांजैक्शंस होते हैं रियल मार्केट में. बेसिकली पीपल आर टेकिंग देयर प्रिडिक्शन गेम्स. लॉजिकली देखा जाए तो वही हो रहा है, जिसमें दे आर डिसाइडिंग दैट वन पार्टी इज गोइंग टू विन, अदर वन इज गोइंग टू लूज. एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी लूज करेगी, दैट्स इट. तो यहां पर आपको मैं एक सरलता से बता दूं, जब हम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, देयर आर ओनली 2 ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑप्शन इन इंडियन स्टॉक मार्केट. वन इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन, जिसको हम CE लिखते हैं, एंड वन इज पुट ऑप्शन. कॉल एंड पुट. तो अब सवाल उठता है कॉल और पुट क्या है? इफ यू गो इनटू द लिटरल डेफिनेशन ऑन द इंटरनेट, यू विल फाइंड द राइट एंड द ऑब्लिगेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट विल डू अ लॉट ऑफ कचरा इन योर माइंड. सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. कॉल, whenever someone is calling you on phone, what do? You pick up the phone. सिंपल सा. देखो मैं बच्चों को जैसे सिखाते वैसे सिखा रहा हूं. कॉल आता है तो हम पिक अप करते हैं. तो सिंपल सा आप समझिए, इफ समवन इज बाइंग अ कॉल, it means that person is predicting things are going to go up, and you put down the phone. Just visualize, you are putting down the phone. Putting down. Call up उठाते हैं, put नीचे हो जा रहा है, तो ये हो गया down. उसको और एक सिंपल सा करते हैं, put it down बोला जाता है. तो put it down फ्रेज याद रखो. ठीक है. He is calling you up side. He is calling you up. तो ये अप से याद रखो. 2 फ्रेज याद रखो. हे डूड, ही इज कॉलिंग यू अप, इसका मतलब ऊपर जाएगा. हे पुट इट डाउन, डाउन मतलब नीचे. सो व्हेनेवर समवन इज प्रेडिक्टिंग कि कोई चीज ऊपर जाएगी तो वो कॉल बाय करता है, और जब भी कोई बोलता है कि कोई चीज नीचे जाएगी तो पुट. तो अब एक बेसिक चीज बताओ, अगर आप लोगों को, लेट मी जस्ट क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स. ठीक है. एंड लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग. अब हम अगर वापस इस चीज की बात करते हैं, अगर आपको इधर देख के लगता कि ये चीज नीचे आने वाली है, तो आप क्या बाय करते? सोचो एक सेकंड के लिए. इफ यू न्यू दैट दिस थिंग इज गोइंग टू कम डाउन, व्हाट वुड यू प्रिफर टू बाय? ऑब्वियसली दिस इज आफ्टर द रिजल्ट एक्शन विच हैज हैपेंड. ऑब्वियसली यू वुड प्रिफर टू बाय अ पुट. आप क्या बाय करेंगे? आप बाय करेंगे एक पुट. ठीक है. तो हम इधर लिख देते हैं, ड्रॉ अ पुट. और अगर आपको इधर देख के लगता है कि ये चीज ऊपर जाएगी, तो व्हाट यू वुड हैव डन इज, आप बाय करते हैं कॉल. सो बेसिकली हमने यहां पर 2 चीजें समझी. ऑप्शंस आर अ वे टू लॉक योर गेन्स. ऑप्शंस आर अ वे जिससे आप हेज करते हैं. जैसे रियल एस्टेट के एग्जाम्पल में क्या कर रहा था, बिल्डर अपना पोजीशन हेज कर रहा था कि भैया कल को इधर स्टे लग गया, उसको इनसाइडर पता है कि हो सकता है, लग भी सकता है, तो ही इज हेजिंग हिज पोजीशन कि मुझे लॉस नहीं हो, सामने वाली पार्टी से मेरे को पैसा आ जाना चाहिए. तो ही डिड अ हेजिंग. बट जो एक रिटेल था, जो वो प्रॉपर्टी खरीद रहा था विदाउट इवन द नॉलेज ऑफ दैट स्टे, व्हाट ही वाज डूइंग इज स्पेकुलेशन. वाइडर यूजेज, बेसिकली हेज फंड्स ने इसको यूज ही इसलिए किया था सो दैट दे कुड एक्चुअली हेज दिस थिंग. तो अब तो हमको इतना समझ में आ गया कि भाई ये क्या चीज है. अब हमेशा याद रखो, व्हाट इज द एडवांटेज. ऑप्शन हम क्यों लेंगे? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग टूल एंड लेट्स से मेरे पास 2 ऑप्शन है. ठीक है. एंड लेट्स से आई एम वेरी गुड विथ माई प्रिडिक्शन गेम. मैं बोलता हूं कि HDFC बैंक यहां से ऊपर जाएगा विद इन 2 days. आई एम एक्सपेक्टिंग यहां से ऊपर जाएगा. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 1470 1480 तक जाएगा. तो अब मान लेते हैं यू डिसाइड दैट यू वांट टू बाय, वेट पहले दोनों ले लेते हैं. 14, आप बोलते हो 1480 जाएगा. ठीक है. एंड ओके, हाँ.
सो आप बोलते हो कि यार एक काम करते 1480 जाएगा, सो हम रफ ले लेते हैं कि करंट प्राइस इज 1440, ऑल्दो इट इज 1444, आई एम एज्यूमिंग इट इज 1440। तो 1440 से आप कितना बोल रहे हो, 40 पॉइंट्स, ठीक है। जस्ट डोंट गो इनटू द टेक्निकल्स, अभी सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। तो आप बोलते हो कि मैं 550 क्वांटिटीज खरीदूंगा। हियर इन ज़रूदा इट टेल्स यू हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बाय so many shares. So let's say you said 550 shares if I want to buy at 1400, ले लेते हैं इसको 1400. So this is the capital, 7,70,000 rupees should be there into your account. आपके अकाउंट में 7,70,000 rupees होंगे, only then you will be able to buy HDFC Bank. अगर आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं है, आप HDFC Bank शेयर्स नहीं खरीद सकते हो। So let's assume आपके पास वो पैसे नहीं है, बट यू आर 110% श्योर कि 1480 जाएगा। सो नाउ लेट मी गिव यू एन ऑल्टरनेटिव। आप लोग कॉल्स पे जाते हैं, आप बोलते हो 1480 के भी ऊपर जाएगा, तो आप 1480 का कॉल देखते हो, एंड नाउ द प्राइस इज दिस। नाउ प्लीज डोंट गेट जजमेंटल, दोज हु नो ऑप्शंस, कि भाई ये तो OTM है, ये तो वो हो जाएगा। लेट्स गो स्लो बाय स्लो, आई एम एक्सप्लेनिंग यू स्टेप बाय स्टेप। नाउ सी द डिफरेंस। ये क्या हो गया, उधर 7 लाख रुपए लग रहा था, इधर सिर्फ 2000 रुपीज लग रहा है। So don't you think we should actually buy this thing if we are so sure? Now wait, listen. There are multiple factors which we need to consider before buying an option. But because अभी हम थोड़ा सा basics जैसे समझ रहे हैं, तो obviously it would be cheaper. तो मान लेते हैं 1480 आपको 2000 रुपीज में आ रहा है, और अपन अब देखते हैं कि HDFC बैंक 1500 का कॉल कितने में आ रहा है। सो 1500 का कॉल तो और सस्ता, 1347। वाओ, ये क्या है, ये तो और सस्ता आ रहा है। अच्छा, तो वेट, लेट्स सी HDFC बैंक का 1460 का कॉल कितने का आ रहा है। सो 1460 का कॉल 4000, ये तो महंगा हो गया। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिंपली सिग्निफाइज दैट कम टाइम में आपकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा प्रीमियम आप पे करेंगे। लेट मी सिंप्लीफाई इट। विच पोजिशन डू यू थिंक हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी टू रीच फास्टर? इज इट 1460 और 1480 और